قدموں پہ بیٹھ کر اس سے سیکھ سکیں۔ ہم جہاں جہاں بھی ہیں ہم خداوند کی پریزنس میں ہیں، خداوند کا روح ہمارے ساتھ بنا ہو۔ لاسٹ 3 جو سرمنس ہوئے ان کی سیریز جو ہیں، اگر آپ نے نہیں سنی ہے، آپ میں کوئی نہیں سن پایا، تو ویب سائٹ پر یا فیس بک پر جو ہے وہ بین شاذلین کے اور EIC کے پلیٹ فارم سے جو ہے آپ سن سکتے ہیں۔ لاسٹ 3 جو ہیں ان میں سے اٹھنے والے جو چند سوالات تھے ان پر آج ہم بات کریں گے۔ اور ہمارے ایک عزیز بھائی نے یہ 2 سوال بھیجے تھے، اور وہ یہ تھا کہ جی ہوا کا عدن میں رہ کے بچوں کو جنم دینا بات جو ہے تھوڑی وضاحت کر دی جائے تو زیادہ اچھا ہوگا، کنفیوزنگ ہے، پریشان کن ہے، اس کی وضاحت کی جائے، اس کو الیبوریٹ کیا جائے، یا اس کو ویاپک جسے ہم کہتے ہیں ہندی میں، اسے جو ہے تھوڑا سا اور کھولا جائے۔ اور سیکنڈ یہ تھا کہ اگر بچے وہاں پر موجود تھے تو کیا وہ عدن میں رہے یا پھر عدن سے وہ بھی نکلے۔ ٹھیک ہے، تو عدن کی ڈیفینیشن جو ہے وہ پچھلے ہم نے سرمن میں بھی کی۔ عدن بذات خود سیلف ایگزسٹنگ زمین پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ہم نے یہ سیکھا عدن جو ہے وہ خداوند کی پریزنس کے سبب سے ہے۔ عدن جسے ہم کہتے ہیں خدا کا عدن، اس عدن میں جس میں آدم کو اجازت دی گئی یا رکھا گیا، اس سے یہ پریولیج دیا گیا کہ وہ خداوند کی پریزنس یا اس کی چھتر چھایا میں رہے، اس کے ساتھ سکونت کرے، اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے اور اس سے باتیں کرے۔ یہ عدن ہے۔ اگر میں اور آپ یہ سمجھیں کہ جی وہ عدن جو ہے وہ کہیں آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے، ہاں مٹی ایگزسٹ کرتی ہے، ولڈرنس ایگزسٹ کرتے ہیں، دریاؤں کے نام ایگزسٹ کرتے ہیں، ڈائمینشنز جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہیں، پر وہ اونٹ کٹاروں سے بھری پڑی ہے۔ عدن تب تک تھا جب تک آدم خدا کے ساتھ اور خدا آدم کے ساتھ ایک جگہ پر خداوند کی پریزنس میں ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ عدن کہلایا۔ ٹھیک ہے، آنے والے ہفتے میں خدا نے چاہا تو ہم فردر جو ہے اس پہ بات کریں گے اور اس کو ویریفائی کریں گے کہ ہمارا یہ کہنا کہ عدن خداوند کی پریزنس ہے، اس کو اور ہم جو ہے بڑے ویاپک طریقے سے یا اس کو الیبوریٹو فارم میں اس کو اور زیادہ جو ہے ہم ڈسکس کر پائیں گے کہ یہ نہ صرف زمین پر عدن بنا بلکہ کہیں اور بھی جو ہے وہ خداوند کا عدن تھا جس میں ابلیس بھی رہتا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ حزقیل کے صحیفہ اس کا 28واں باب اور اس کی 13ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے خداوند کا عدن، جہاں پر وہ پتھروں پر، قیمتی پتھروں پر اور آتشی پتھروں پر رہا کرتا تھا۔ تو وہ والا عدن جو ہے وہ بھی کوئی ایسی ہمارے جیسے بھی نہیں ہے جہاں پر آدم تھا، وہ بھی خداوند کی پریزنس کے سبب سے تھا۔ اور ابلیس کو لکھا ہے کہ عدن سے نکال دیا گیا، اس والے عدن سے، کیونکہ خداوند نے اسے اپنی پریزنس سے، اپنے چہرے کے نور سے، اپنے چہرے کے دیدار سے اسے محروم کر دیا اور اسے کہا کہ تو یہاں سے چلا جا۔ اسے جو ہے وہاں سے اس نے نکال دیا۔ تو یہ جو عدن کی جو بات کر رہے ہیں، عدن بذات خود زمین پر اونٹ کٹاروں سے بھری زمینیں نہیں ہیں، ہر وہ جگہ عدن ہے جہاں پر خداوند موجود ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے یہ بھی بات سیکھی تھی، خداوند کے پہاڑ کون کون سے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں ہیں کہ وہاں پر ہر وقت خداوند کی پریزنس رہتی ہے، وہ اس لیے ہیں کیونکہ خداوند کا جلال، خداوند کی قدرت مینیفسٹ ہوئی، اس کا اظہار ہوا۔ ورنہ تو جہاں پر موسیٰ نے جلتی جھاڑی دیکھی تھی، نہ جانے کتنے جانور آج تک وہاں پر جو ہے وہ رفع حاجت کے لیے بھی جاتے ہوں گے، لوگ جوتیاں پہن کر بھی وہاں سے سیر و تفریح بھی کرتے ہوں گے۔ لیکن وہ ایک خاص مومنٹ تھا جب خداوند نے اسے کہا کہ میں خداوند یہاں موجود ہوں، میری پریزنس کی جو ہے اس کو آنر کر، اس کا لحاظ کر۔ تو عدن بذات خود کچھ نہیں ہے، عدن خداوند کی پریزنس ہے۔ ہماری دنیا عدن تب بن جاتی ہے
इत्मीनान की जगह तब बन जाती है जब खुदावंद हमारी जिंदगी में मौजूद होता है। आगे बढ़ते हैं कलाम मुकद्दस में। आज की जो सरमन है, इसको अगर यूट्यूब पे अगर आप करेंगे तो इसका जो है अदन के हवाले से कि उसके सवालात के जवाबात के जो है वो टाइटल के साथ आप इसको कर सकते हैं। खुदावंद खुदा ने कहा, पहला बाब और उसकी 28वीं आयत, और वहां पर लिखा है, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो। फलो और बढ़ो। फलने का मतलब, फलने फूलने का मतलब जो है वो भी वही है। मामूर और महकूम का मतलब यह है इसको भर दो और इस पर इख्तियार जताओ। ये बात जो है नर और नारी को ये बरकत दी गई थी। मेरा एक सवाल है एज ए लिसनर, जब मैं बाइबल को रीड करता हूं तो मेरा एक सवाल है कि क्या ये जो ब्लेसिंग्स है मल्टीप्लिकेशन की, फैमिली की एक्सटेंशन की, एक्सपेंशन की, ये खुदा ने प्लान किया था कि गुनाह के बाद इंसान करेगा, या फिर उसने प्लान किया था कि ये मैं तुझे बरकत देता हूं, जब तुझे तेरे जैसा को मिले, तेरा मददगार मिले, तो जैसे बाकी जो है वो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तू भी हो। अगर हम ये कहें कि बाद में उनको जो इजाजत होनी थी कि पहले वो नाफरमानी कर लें और उसके बाद फिर वो बच्चे पैदा करें, तो इसका मतलब खुदा ने पहले से ये प्लान बना रखा था कि मैं आदम को गुनाही की तरफ लेके जाऊंगा, नेको बद की पहचान के दरख्त खाने की तरफ इसका दिमाग जो है पहले से जो है वो प्रीडेस्टिन्ड कर दूंगा। अगर ऐसी ही बात है तो फिर रोजे अदालत पे आदम क्यों ना कहेंगे, खुदावन ये सब तो तेरा रचाया हुआ था, मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं था। आदम बरीउल जुमा हुए, उन पर ये इल्जाम लगाया ही नहीं जा सकता कि तूने एक गलत चॉइस की और इतनी इंसानियत को सदियों तक तेरे सबब से दुख उठाना पड़ा। अगर हम इस बात के कायल हैं तो हम ये बात मानते हैं कि जी अदन में जो है आदम के बच्चे पैदा नहीं हुएंगे। लेकिन अगर हम ये कहें कि खुदा की जात बे इल्जाम है और वो सदियों से, जब से आदम ने जो है वो होश संभाला है, खुदावंद की जात रास्त है और मुनसिफ है, वो दुरुस्त काम करती है, चालाकी नहीं करती, ना ही बदी से आजमाती है और ना ही आजमाई जा सकती है। तो इसका मतलब फिर ये है कि ये जो आयत है 28वीं, इसका इतलाक या इसकी एप्लीकेशन या इसकी बरकत जो है उनकी बाकी अदन की चीजों के साथ, जैसे फल और पौधे बढ़ रहे थे, जैसे जानवर मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसी तरह से इंसानों के लिए भी ये ब्लेसिंग्स थी कि वो मल्टीप्लाई हों और उस जगह को, उस जमीन को, उस अदन को जो खुदा उनकी प्रेजेंस में है उसको भर दें। ये बात यहां तक जो है वो हम करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि खुदा ने कहा कि नेको और बद की पहचान के दरख्त में से मत खाना। और पिछला जो सरमन था उसमें हमने देखा कि नेक और बद की पहचान का दरख्त जो है और हयात का दरख्त दोनों ही खुदा का कलाम है। एक वो जिसे हम पहला अहदनामा कहते हैं, और एक वो जो दूसरा अहद जो दरमियानी बना, जो जिस्म में आ गया, उसे हम हयात का दरख्त, जिसने कहा राह हक और जिंदगी क्या हूं मैं हूं, वो हयात का दरख्त है। लेकिन नेक और बद, गलत और दुरुस्त में फर्क करने की वजह से पहला वाला जो था, पहला कलाम जो था जिसकी सिलेक्शन की गई खुद से इंसान ने कि मैं इस नेक और बद की पहचान के दरख्त की जो है वो सिलेक्शन करता हूं, तो फिर उसका जो जो उसकी जो एप्लीकेशन है या उसका जो इतलाक है इंसान पर इस तरह से होगा कि जो कुछ तू करेगा उसकी जजमेंट होगी, उसको जो है वो तोला जाएगा, उसको नापा जाएगा, और अगर वो पैमाने के मुताबिक, अगर वो यार्ड स्टिक के मुताबिक, अगर वो थ्रेश होल्ड के मुताबिक ना निकला तो तुझे कसूरवार ठहराया जाएगा। इंसान ने अपनी कोशिश की चॉइस को
लिया कि मैं अपनी कोशिश से भी कुछ कर सकता हूं। और ये भी बात नहीं कि उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया था। हर रोज खुदा जब उससे बातें करने आता था तो आदम इसी किस्म के सवालों से खुदा का वेलकम करता था। खुदावन, हयात के दरख्त तो ठीक है जिसको हम हर रोज खाते हैं, जिंदगी पाते हैं, खुदा की मानंद है, मौत नहीं आएगी, जलाल में जिंदा रहते हैं, सुपर नेचुरल हैं। पर ये जो नेको बद की पहचान का दरख्त है, इसके खाने से क्या कुछ हो सकता है? उन्होंने अब तक ग्रेस को एंजॉय किया था, खुदा की मेहरबानी और खुदावंद की प्रेजेंस, गैर मशरूत अनमेरिटेड फेवर को उन्होंने देखा था। अभी तक उन्होंने मेरिट्स पर अपने आप को जज होते हुए नहीं देखा था कि खुदा जब अदालत करता है तो फिर क्या करता है। उन्होंने कहा कि अगर ये भी खुदा का कलाम है और ये भी खुदा का कलाम है, इसे खाने से जिंदगी मिल सकती है, तो ये कितना को टफ और सख्त और मुश्किल हो सकता है। They got the wrong choice. उसके साथ फिर हमने पिछले सरमन में सीखा कि खुदा उसके साथ कलाम की वजह से और आदम के काम की वजह से मौत जो है वो एक्टिवेट हो गई, सब आदमियों में फैल गई। खुदावंद की प्रेजेंस उस जगह से हट गई और वहां पर जो है वो विल्डरनेस, ऊंट कटारे और कांटे जो हैं वो रह गए हैं। और इससे आप इंसानी जिंदगी की मुश्किलों को भी जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से खुदावंद की प्रेजेंस ना हो इंसान कितनी मुश्किलात का शिकार रहता है। आगे बढ़ते हुए हम क्यों ये बात करते हैं कि आदम के पहले भी बच्चे थे या उसकी औलाद थी, इसके कुछ हिंट्स जो हैं हमें बड़े वाज़े तौर पर खुदा के कलाम से मिलते हैं। जब भी कभी पनिशमेंट, जब पहला जो है वो कसूर हुआ, नाफरमानी हुई, नाफरमानी के नतीजे में लानत हुई, तो खुदा ने पहला जो काम किया, जिस तरह से शरीयत में कुर्बानियां दी जाती थी, खुदा ने पहला ये काम किया कि उसने एक जानवर लिया, उसे कुर्बान किया और टेम्पररीली, आर्जी तौर पर, वक्ती तौर पर आदम और हवा के गुनाह को उसने ढांप दिया, जब तक के उन पर पूरे तौर पर शरीयत का नफाज, उसका जो है पूरी तरह पर उसके जो है एनफोर्समेंट ना की जाए। उसने वक्ती तौर पर उस बात को जो है वो ढांपा और उनको जो है वहां से खुद हट गया। उनको नहीं धक्के मार के उसने बाहर निकाला, अगरचे के कलाम में लिखा है कि उनको निकाल दिया, फिर वहां पर शोला जन तरवार की, खुदावंद की प्रेजेंस उस पर से हट गई। जब कभी भी पनिशमेंट मिलती है तो पनिशमेंट जो है या तो गुजरी बात पर मिलती है या फिर जो करंट सिचुएशन है उन इंसेंटिव्स को बंदे से, औरत से, शख्स से, मुजरम से, सस्पेक्ट से ले लिया जाता है। अब ये नहीं ख्याल किया जाता चूंकि आने वाले सालों में तू ये ख्याल करता है कि तू बड़ा आदमी बन जाएगा, अमीर आदमी बन जाएगा, तो तेरी दौलत जब्त कर दी जाएगी, तेरे बैंक अकाउंट्स जो हैं वो फ्रीज कर दिए जाएंगे। ऐसा हर कोई कुछ भी नहीं होता। जो कुछ भी होता है वो करंट लाइफ में आपसे जितने भी आप इंसेंटिव्स एंजॉय कर रहे हैं वो आपसे ले लिए जाते हैं। सबसे पहली बात, आपकी फ्रीडम आपसे ले ली जाती है जब आपको हवालात में बंद किया जाता है। अंदर और बाहर आने जाने के जो दरवाजे आपके लिए खुले हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। आदम और हवा जो है, लिखा है कि खुदावन ने तीसरे बाब के आखिर में लिखा है कि खुदावन ने शोला जन तलवार को जो है वो और कुरोबियों को मुकर्रर कर दिया कि हयात के दरख्त की राह जो है उसकी हिफाजत करें ताकि वहां से चलकर कोई अंदर ना आए। उसके जो है खुदावंद की प्रेजेंस में आने और जाने का रास्ता बंद कर दिया गया। वो खुदावंद के चेहरा को दोबारा देख नहीं पाएगा, पहली बात। और अगर कभी देखेगा तो बेहोश हो जाएगा, अपना मुंह ढांपेगा, फिर खौफ खाएगा कि मैं नंगा हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं मर जाऊंगा। वो कुदरत, वो लम्हे एंजॉय नहीं कर पाएगा जिसमें खुदा ठंडे वक्त में आकर उससे बातें किया करता था। अगर मैं और आप तीनों जो लोग या तीनों जो हैं जिनको सजाएं मिली, उनकी एग्जिस्टिंग लाइफ, मौजूदा जिंदगी में जो कुछ हो रहा था
खुदावन ने उन चीजों को जो है वो वर्ष बना दिया, एग्रीवेट कर दिया, उनसे वो इंसेंटिव ले लिए। पहले वाले को कहा चूंकि तूने ये किया, शाम से कहा चूंकि तूने ये किया, तू अपनी उम्र भर जब तक तू जमीन पर पैदाइश लेता है तू अपने पेट के बल चलेगा। पहले टांगे थी, अब ये कोई नहीं कह सकता उसकी 2 थी, 4 थी या 6, 8, 10 या इससे भी ज्यादा थी, कोई कुछ नहीं कह सकता, पर उसकी टांगे जरूर थी। खुदा ने कहा कि मैं तेरा ये इंसेंटिव तुझसे वापस लेता हूं, तू टांगों पर नहीं पेट की खाल के बल जो है वो जमीन पर चलेगा और बार बार तेरा मुंह जमीन की खाक से लगेगा। ये पहले को सजा मिली है और उसकी मौजूदा जिंदगी से मिली है। खुदा ने उसे उसका इंसेंटिव वापस ले लिया। दूसरे शख्स को सजा देते हुए उसने कहा चूंकि तूने उसकी मानी जिसने तुझसे झूठ बोला था कि तुम खुदा की मानित हो जाओगे, तो फिर तेरे लिए यह सजा है कि मैं तेरे बर्थ पेन्स को, चाइल्ड बर्थ पेन्स जो हैं उनको मैं एग्रीवेट कर दूंगा, बहुत बढ़ा दूंगा। उसकी एग्जिस्टिंग लाइफ है, उसे आने वाली जिंदगी में नहीं, उसकी एग्जिस्टिंग लाइफ से उसे जो है वो सजा मिल रही है कि मैं इसे बहुत बढ़ा दूंगा, उसका तू अंदाजा भी नहीं कर सकती। अब जब तू, ये लफ्ज अब नहीं लिखा है, जब तू बच्चों को जन्म देगी तो फिर मैं तेरे इस दर्द को बहुत बढ़ा दूंगा। पहले तेरा शौहर, तेरा साथी, तेरे जैसा जिसकी तू मददगार बनी है, पहले वो तुझे अपने बराबर का आदम समझता था, तेरी कदर करता था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेगा। तुझे ताने भी मार सकता है कि तूने ये किया, और बच्चों की पैदाइश के लिए तेरी रगबत जो है हमेशा उसकी तरफ रहेगी। हर काम के लिए तेरा झुकाव जो है वो उस पर रहेगा और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। पहले वो तुझे अपने बराबर का आदम जानता था, मददगार जानता था, लेकिन अब वो अपनी जो सुपीरियरिटी है उसको तुझ पर जताएगा कि मैं सुपीरियर हूं, मैं तुझ पर हाकिम हूं, मैं जोरावर हूं। ये उसकी एग्जिस्टिंग लाइफ है, क्योंकि आदम ने जो कहा था, ओह ये मेरे गोश्त में से गोश्त, मेरी हड्डी में से हड्डी है, यानी हड्डी और गोश्त में ये मेरे बराबर है, ये नारी कहलाएगी और बच्चों को जन्म देगी। और हमने उसका नाम जो रखा गया कि वो नारी कहलाएगी, हमने अंग्रेजी के तर्जुमे में से भी पढ़ा कि शी वॉज द मदर ऑफ ऑल लिविंग्स। वो सब जिंदों की मां थी। पैदाइश के वक्त जो है आदम ने नहीं कहा कि ये सब जिंदों की मां कहलवाएगी। अगर ऐसा होता तो ये डिस्क्रिपेंसी जो है वो बाकी रहती कि जी हो सकता है उसने फ्यूचर की नबूवत की हो, इसलिए अदन में ऐसा नहीं था। बल्कि जब आदम को ये पता चला कि अब हम यहां से निकलने वाले हैं, उस वक्त उसने उसे हवा का नाम दिया, यानी सब जिंदों की मां। उसके काम की वजह से, उसकी सिफ्त की वजह से, क्योंकि वो बच्चों को जन्म देती थी। क्योंकि आदम ने ये बात ख्याल की कि मैं जब बनाया गया था तो मैं तो मट्टी से घड़ा गया था, लेकिन इसके बतन से जितने पैदा होते हैं वो मट्टी से नहीं बनते हैं, वो जिंदा जो हैं वो जिंदा होते हैं और जिंदा ही अपनी मां के बतन से निकलते हैं। ये हवा है, उसने अपनी बीवी का नाम हवा रखा क्योंकि वो सब जिंदों की मां थी। जब हम बात करते हैं कि आदम जो है वो सुपर नेचुरल लाइफ गुजार रहा था, कैसी? जैसे खुदा का बेटा अपने जिंदा होने के बाद हुआ, वैसा आदम उस रोज था जिस रोज उसे खुदावंद ने जीती जान बनाया। ये दोनों आदम जो हैं
इस तरह से थे। पहले आदम ने जलाल में यानी सुपर नेचुरल लाइफ शुरू की और नफ्स में यानी नेचुरल में एंड अप हो गया, और फिर सारी जिंदगी जो है वो दुख उठाता रहा। दूसरा आदम उस आदम के मुशाबा, उसके जैसा जिस्म में जाहिर हुआ, पर जलाल में आसमानी मकामों पर उठाया गया। आदम की पोजीशन रिवर्स हुई, जो वो आदम अदन में रखता था। खुदा के बेटे ने फिर से उसे नया बनाया ताकि वो कादरे मुतलिक के साथ सुकूनत कर सके। और हम अक्सर कहते हैं खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए। दिस इज फॉर द टाइम्स टू कम। मेरे चेहरा की रौनक मेरे खुदावंद के सबब से है। तो उस रोज को देख सके जिस रोज वो अपने मेहमानों को देखने के लिए चैम्बर में दाखिल हो, मेहमान खाना में आए, तो हम उसके चेहरा को देख सकें। ऐ इस्राएल, खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए। इस आयत का ये रुख भी हो सकता है। तीनों के लिए जो एग्जिस्टिंग लाइफ है उसी में से उनको सजा मिली। जो कुछ वो कर रहे थे, जो कुछ वो हो रहा था, उससे खुदावंद ने उन्हें महरूम कर दिया। आदम से कहा, फिर से दोहराकर उसका जुर्म दोहराकर एक्सप्लेन करके उसे कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त में से खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि ना खाना, लिहाजा जमीन तेरे सबब से लानती हुई। अब हवा ने जब खाया उसको तो कुछ नहीं हुआ, और वो जो अबलीस है उसने सांप के जरिया से जब हवा से बातें करना शुरू की तो उसने झूठ बोला। उसने कहा कि तुम खुदा की मानिंद हो जाओगे। याद रखिएगा, कलाम मुकद्दस में, ज़बूरों की किताब में, मुझे वर्स इस वक्त और ना ही चैप्टर याद है, पर लिखा है कि उसने इंसान को अपने से थोड़ा ही कमतर बनाया। कादरे मुतलिक तो न बनाया, पर उसमें सारी अपनी क्वालिटीज जो हैं उसने रख दी कि वो समुद्र की मछलियों पर भी इख्तियार रखे, वो जमीन के जानवरों को भी अपने हुक्म में लाए और एक्सप्लोर करे। यही वो झूठ था जिसको शैतान ने बोला था कि देखो खुदा सब कुछ कर रहा है, पर तुमसे वो काम नहीं हो रहा जो एक काम वो कर रहा है। तखलीक का काम तुम नहीं कर पा रहे हो। जिस रोज तुमने नेक और बद की पहचान के दरख्त में से खा लिया, यू विल कंप्लीटली बिकम लाइक गॉड। और खुदा नहीं चाहता कि तुम उसके जैसे बन जाओ। यही बात, यही झूठ जो है उनको सच लगा कि खुदावन ने हमसे जो है कुछ चीजें छुपा रखी हैं, पीछे रख छोड़ी हैं, पूरी बात हमें बताई नहीं है कि जिस रोज हमने उस हयात के दरख्त में से खाने की वजह से हम अब्दुल्ला तक जिंदा रहेंगे, और नेक और बद की पहचान के दरख्त में से खाने से हम कादरे मुतलिक हो जाएंगे। क्या बात है! ये वो चीज है जिसको उन्होंने यकीन जाना, लेकिन ये रिवर्स हो गया। खुदावन ने भी उनको बताया था कि ये जो तुम सुपर नेचुरल लाइफ गुजार रहे हो, जिस रोज तुमने खाया तुम मरे। वो जो सुपर का हिस्सा है वो उतर जाएगा और नेचर का जो हिस्सा है वो बाकी रह जाएगा। तुम सुपर नेचुरल से, सुपर नेचर से तुम नेचर में रह जाओगे, नफ्स में रह जाओगे, मट्टी में रह जाओगे, और खुदा का जलाल तुमसे उठ जाएगा। हम खुदा को कहते हैं कि वो माफौकल फितरत जात है। फितरत नहीं, माफौकल फितरत यानी सुपर नेचुरल है। हमारी नेचर में समझ नहीं आता वो। हम इसीलिए जब भी कभी खुदा को सोचते हैं, हम अपने जैसा बशर और छोटा सा आदमी सोचते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके थोड़ा सोच लेते हैं तो, लेकिन वो तो हर जगह मौजूद है, ग्लोब की हर जगह मौजूद है। हम जब खुदावंद की जात को देखते हैं तो अबलीस ने जो उससे झूठ बोला था सांप की मार्फत, वो ये कि तुम खुदा की मानंद पूरे के पूरे कादरे मुतलिक हो जाओगे। और ये बात उन्हें फैसिनेट की। अच्छा, खुदा ने ये बात हमसे छुपाई है,
अब तो हम जरूर ये करेंगे। हवा ने जब खाया कुछ नहीं हुआ। हवा ने कहा देख मैंने खाया, ना मैं मरी, ना इसमें कोई तब्दीली आई, ना ही कुछ इर्द गिर्द बदला है। तो आदम तेरे भी खाने से क्या बदल जाएगा? तू खा ले, हो सकता है हम दोनों कट्ठे ही सुपर नेचुरल हो जाएं और कादर मुतलक हो जाएं, खुदा की मानंद पूरे के पूरे बन जाएं। लानत का जो सिलसिला है वो आदम के साथ जुड़ा। जिस रोज आदम ने खाया, आदम, चूंकि हवा आदम में से निकली थी, आदम के खाने के सबब से पूरी जमीन, पूरा अदन जिसमें आदम रहता था, उसके सारे जानवर, उसमें से जन्म लेने वाली औलाद, सब के सब पर खुदावंद की नाराजगी जो है वो छाई और खुदावंद का गजब भड़का और उसने अपनी प्रेजेंस को उनसे हटा लिया। ये सवाल कि अगर उनके बच्चे थे तो उनका क्या हुआ? वो सारे उसी सरजमीन पर थे, लेकिन खुदावंद ही वहां से हट गया। उसकी शफकत का हाथ, उसका सुपरनेचुरल हाथ और उसकी प्रेजेंस जिसके सबब से अदन अदन था, जब वो हटा तो जमीन रह गई, मट्टी रह गई, ऊंट कटारे रह गए। और अदन की जो बात मुझे लगती है, जब मैं उसको पढ़ता हूं तो मुझे अदन की बात एक खूबसूरत और भी लगती है। वहां पर जो भी बात होती थी सब सुनते थे और सब समझते थे। जानवर भी सुनते थे, पौधे भी सुनते थे, हवा भी सुनती थी, आदम भी सुनता था और उनके बच्चे भी बातें सुनते थे कि क्या हो रहा है, क्या कहा जा रहा है। जिस रोज खुदावंद का हाथ हटा, जिस रोज आदम को खुदावंद ने सजा सुनाई, सब सुन रहे थे। आदम जो है खुदावंद की प्रेजेंस से था और खुदा का हाथ हटने की वजह से बच्चे कहीं भी नहीं गए, वो सब आदम के साथ वहीं पर मौजूद थे। फिर तितर बितर हुए, फिर एक एक से दूसरी जगह जो है वो बाप को या माँ को या दोनों को इसका जिम्मेदार ठहराते हुए वो वहां से जो है वो तितर बितर हुए। तितर बितर का लफ्ज जो है मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि इसका ताल्लुक जो है आने वाले चैप्टर में जो काइन है उसकी बीवी के साथ। और वो क्यों? क्योंकि काइन खुद कहता है खुदा से, जब खुदा ने कहा तेरा भाई किधर है, तो वो उसका खून मुझे जमीन से पुकारता है। उसने कहा मुझे क्या पता, मैं कुछ उसका निगहबान हूं, मैं उसकी रखवाली करता हूं, चौकीदार हूं मैं उसका। ऐसा हरगिज नहीं। खुदा ने कहा कि अब जमीन, तू जमीन की तरफ से लानती हुआ, लानत इज ए रिवर्सिंग टू यू। पहले आदम की वजह से जमीन और उसकी सारी चीजें और जो कुछ जमीन से उगा था, निकला था, बना था, जुड़ा था, सारे का सारा लानती हुआ। खा वो इंसान थे, खा वो जानवर थे, खा वो हवा के बतन से निकलने वाले बच्चे थे, सब के सब लानती हुए। और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई। सब ने गुनाह किया। आदम का तुख्म होने की वजह से सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से, खुदा के अदन से महरूम हो। खुदावन ने जब काइन से कहा कि तूने ये क्या किया, गुनाह तेरे दरवाजे पर दबका बैठा है, तेरा मुश्ताक है, तेरे लिए इंतजार कर रहा है। और काइन ने कहा कि देख आज तूने मुझे अपने हुजूर से निकाल दिया है। खुदा को मकानों में थोड़ा रहता था, खुदा को बाउंड्री बना के किसी प्लॉट में थोड़ा रहता था, लेकिन फिर भी लिखा है कि आज तूने अपने हुजूर से मुझे निकाल दिया है, मैं जमीन पर आवारा और खाना खराब रहूंगा और जो कोई मुझे पाएगा मार डालेगा। अब जो कोई का जो लफ्ज है, इट्स रिप्रेजेंट्स अ मल्टीट्यूड, एक बहुत बड़ी भीड़ को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। सिर्फ अगर एक चार थे, दो बच्चे, दो वालदैन, एक मर गया, तो अब उसे जो कोई कहने की जरूरत नहीं थी कि मेरे वालदैन जो है अब मुझे मार डालेंगे। लेकिन उसका जो कोई का जो लफ्ज है, उसका मतलब है कि जमीन पर और भी इंसान हैं, और भी आदम हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, बड़ी भीड़ है। सबको मालूम पड़ चुका है कि मैंने भाई का कत्ल किया है। मैं ये लफ्ज एहतियात से इसलिए बोल रहा हूं, मैंने भाई का कत्ल किया है, मैंने उनके भाई का भी कत्ल किया है जो हवा से
पैदा हुए हैं, आदम से पैदा हुए हैं, वो सब जानते हैं कि मैंने भाई को मार डाला है, और सब में गमों गुस्सा की लहर दौड़ गई है। अब जो कोई भी मुझे पाएगा वो पहला काम ये करेगा कि वो मुझे मारेगा, जान से मार देगा। पनिशमेंट का हम बात कर रहे थे कि एग्जिस्टिंग लाइफ से हुई। खुदावंद के कलाम का एक पैटर्न है, मिसी यीशु के मुंह के अल्फाज हैं, और वो क्या है? अगर आप मैथ्यू 25-29 पढ़ें और मैथ्यू 13 और उसकी वर्स 12 पढ़ें, दोनों अबवाब में लिखा है कि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है, जिसने बहाना किया है, जिसने गलती की है, जो लेजी है, जो गलत चुनाव करता है, उससे वो भी ले लिया जाएगा। जिसे वो अपना समझता है उससे वो इंसेंटिव्स ले लिए जाएंगे। ये पनिशमेंट का तरीका है। जिसको दिया गया है उससे वसूल किया जाएगा। आदम को सब चीजों का इल्म दिया गया था, उसके बावजूद जब उसने ये सब कुछ किया तो उससे उसी कदर जो है वो वसूली की गई और उसे उतना ही जिम्मेदार ठहराया गया। हम अब जब अपनी मौज में बैठे होते हैं तो हम कहते हैं खुदा को वहां पर पराठे खाने थोड़ा आता था आदम के साथ कि आज हवा ने 6, 4, 10 पराठे मूली वाले बनाए हैं तो अब हम खा ही लें। खुदा के वहां पर आने का मकसद मतलब ये था कि यूनिवर्स की सारी बातें उसे बताए, हयात और हयात के दरख्त की बाबत उसे बातें बताए, फिर नेक और बद की पहचान के सारे प्रोज एंड कॉन्स, उसके सारे जो हैं वो फ्रूट्स और उसके इफेक्ट्स और सारी चीजों को उस पर एक्सप्लेन करे। हर चीज उसने आदम को एक्सप्लेन की। आज दुनिया में हम क्रिश्चियन, मुस्लिम या फिर हम हिंदू या फिर ज्यूज, हम इन डिविजन्स में तो अब हैं। अदन में ये लाइफ नहीं थी कि तू ये वाला बच्चा यहूदी पैदा हुआ है, ये वाला क्रिश्चियन पैदा हुआ है, ये वाला हिंदू पैदा हुआ है, ऐसी कुछ डिविजन नहीं थी। तब एक ही बात थी, जो भी आदम से पैदा होता था उसको ये बात सुनी भी गई थी, उससे बयान भी की गई थी, क्योंकि जो कोई भी अदन में बात होती थी वो सब सुनते थे, जानवर भी सुनते थे। इसीलिए आज नेचर में जब तब्दीलियां आती हैं जानवर भी समझते हैं, तूफान आते हैं बड़े बड़े, जानवर भी रिस्पॉन्ड करते हैं, इंसान भी रिस्पॉन्ड करते हैं। खुदावंद खुदा ने ये सारी बातें कहने के लिए उससे जो है इन बातों को वो उससे करता था, उसे हर चीज एक्सप्लेन करता था, आदम के सवालों के जवाब भी देता था, और जो कुछ आदम नहीं था खुदा की मानिंद उसका भी जवाब उसे मिलता था। लेकिन उसके बावजूद, हुक्म के बावजूद भी उसने कहा कि अब हम खुदा की मानिंद कादर मुतलिक होने वाले हैं। नेक और बद की पहचान का दरख्त ये कलाम का एक दूसरा रुख है, जो अदालत को लाता है, जो रिजेक्शन को लाता है, जो पनिशमेंट और पेन को लाता है, क्योंकि उस कलाम की नाफरमानी लानत का सबब है। जैसे शरीयत की किताब में लिखा है जो कि अगर तू जितनी बातें इसमें लिखी हैं खुदावंद अपने खुदा की बात को माने तो तुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगे। शरीयत, लॉ ऑफ द मोसेस इज नॉट अ कर्स। उसकी नाफरमानी जो है वो लानत को लेकर आती है। वो खुदा का वैसा ही कलाम है जैसा खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है, पर उस कलाम को खाने, चखने और उसकी छतर छाया में रहने वाले जो हैं वो जिंदगी तक नहीं पहुंचते। बल्कि कलाम में हमने पिछले सरमन में देखा था यूहन्ना की अंजील के पहले में आई थिंक 5वें बाब की 39वीं आयत में कि तुम सब किताबे मुकद्दस में जिंदगी को ढूंढते हो, हमेशा की जिंदगी की तलाश करते हो, जबकि किताबे मुकद्दस तो मेरी गवाही देती है कि हयात मुझ में है। किताबे मुकद्दस भी खुदा का कलाम है, पर उसकी जो है अगर आप उसके मातहत रहकर चलेंगे तो वो आपको हमेशा की जिंदगी नहीं देगा, बल्कि वो आपका उस्ताद बन सकता है यीशु मसीह तक लाने तक। हम इसीलिए ये बातें करते हैं कि जी आदम की पहले अदन में भी औलाद थी, क्योंकि उसके एविडेंसेस मिलते हैं। फिर ये कि वो सब
जो है वो अदन से निकले या फिर कह लीजिए कि खुदावंद का हाथ या उसकी हुजूरी जो है उस पर से जाती रही। जिस रोज तूने खाया उस रोज तू मरा। जमीन को मामूर करो और महकूम करो। अक्सर खादमों से ये बात सुनी है, और वो ये कि आदम जो है वो तीन बड़े जो है वो डोमिनियन से कह लीजिए या इख्तियारात को एंजॉय कर रहा था। उसके पास डोमिनियन थी, यानी एक ऐसा इलाका था जिस पर वो हुकूमत करता था। उसे किंग कहा जाता है क्योंकि सब चीजें उसके इख्तियार में दी गई और उसे कहा गया कि तू इस पर हुकूमत कर, और वो जो चाहता था, जो कहता था, वही होता था। जिसका जो नाम रखता था उसका नाम भी और उसकी सारी एबिलिटीज और खुसूसियात और कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें पैदा होती थी। उसकी डोमिनियन थी। वो एज ए किंग वहां पर राज करता था। एज ए प्रॉफिट उसने जो है वो प्रोफेसीज की, जब उसने उनके नाम रखे और फिर हवा को नारी कहा, तो वो उसके लिए वैसा ही हुआ कि ये जो दूसरा आदम है इसको मैं नारी कहता हूं और ये औलाद को जन्म देगी। उसने जितने जानवरों के नाम रखे उनके वही नाम हुए और उनकी सिफतें भी उनके अंदर पैदा हुई। और तीसरी ये कि वो प्रीस्ट भी था, प्रीस्ट, प्रॉफिट एंड किंग। लेकिन ये तीनों चीजें उस पर के हाथ से जाती रही। जिस रोज तूने खाया तू मरा, तो अपने उस इख्तियार को खो जाएगा। वो एज ए प्रीस्ट फिर खुदावंद के उस जलाल को न देख पाया, एंजॉय न कर पाया जिसको वो अदन में करता था। एज ए प्रॉफिट अब उसके पास ये इख्तियार नहीं रहा कि वो और किसी के नाम रखे। उसने जो किया वो अदन तक ही रह गया। उसके बाद कहीं नहीं लिखा कि उसने किसी का नाम रखा और किसी के लिए कुछ प्रोफेसाई किया। और तीसरी बात, उससे जो दिया गया था कि उस पर इख्तियार करे, उसमें बागबानी करे, उससे वो छीन लिया गया, उससे वो ले लिया गया, उससे वो महरूम कर दिया गया, डिप्राइव हुआ कि खुदावंद की प्रेजेंस उस पर से जाती रही। पूरे अदन के जो बात हम करते हैं कि सब ने सुना, फिर हमने ये भी सुना कि उन सब ने सुना जिसकी वजह से खुदा ने जिनको सजा दी। बच्चों से खुदा ने बात ही नहीं की क्योंकि वो आदम और हवा के सबब से जो है उस लानत का शिकार हुए। हम जो अभी पैदा भी नहीं हुए थे, हम अपने बाप आदम का जिस्म रखने की वजह से हम भी उसके साथ शामिल हुए। पर मसीह पर ईमान लाने के सबब से हमारी इतनी खुलासी होती है कि हम फिर से बहाल होते हैं कि कादरे मुतलक को उस रोज देख सकें, उस अदन में वापस दाखिल हो सकें, उस प्रेजेंस का हिस्सा बन सकें जो आने वाले दिनों में हमारे लिए रखी गई है। इसीलिए कहा जाता है तौबा के मुआफिक फल लाओ, तौबा के मुआफिक फल लाओ। काइन जब नूद की सरजमीन पर गया तो लिखा है कि उसको बीवी मिली, तब तक आदम की उम्र तकरीबन 100 वर्ष की हो चुकी थी। तकरीबन का वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि हमें अंदाजा नहीं है कि कितना वक्त जो है वो गुजर गया। लेकिन उसके बाद जो है जब सेत पैदा हुआ, फिर लिखा है कि आदम से और भी बेटे और बेटियां पैदा हुए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जी ये बात आखिरी बात है जो आदम की जिंदगी के आखिरी जो है वो चैप्टर को क्लोज करते हुए लिखी गई है कि सेत की पैदाइश के बाद आदम 800 वर्ष जिंदा रहा और आदम से और भी बेटे और बेटियां पैदा हुए। ये नहीं कि ना सिर्फ ये कि सेत की पैदाइश के बाद सेत की पैदाइश से पहले भी बेटे और बेटियां पैदा हुए। और ये पैटर्न जो है और भी बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो ऐसे ही लिखा हुआ है। ये मत समझिए कि नूह जो है उसकी उम्र जो है वो 500 वर्ष थी जब उसे सिम, हाम और याफत पैदा हुए। तो 500 वर्ष तक तो नूह भांज थोड़ा था। सारी जेनेसिस को नूह से पहले पहले की जितनी भी जेनेसिस में जितना भी कुछ लिखा है वहां तक ना कोई मर्द भांज था ना कोई औरत भांज थी।
500 साल तक कैसे कुछ इतनी देर में तो लोग डिक्लेयर कर देते हैं मेडिकली अनफिट, ये तो बच्चे जो हैं इसके हो ही नहीं सकते। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि उससे पहले नूह के बच्चे पैदा नहीं हुए, पर ये वो बच्चे थे सिम, हाम और याफत जिनसे बाइबल की कहानी आगे चलती है, हकीकत को आगे जो है वो जगह मिलती है। इसका मतलब हरगिज नहीं कि कायन और हाबिल से पहले कोई पैदा नहीं हो सकता। ये वो हैं जिनके साथ एक दुर्घटना जो है वो जुड़ी है, जिसके सबब से लानत हुई है, जिसके सबब से खुदावंद की जात डिस्टर्ब हुई है, उसका भी इत्मीनान जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। इसी तरह से और भी बाइबल जो पैट्रियार्क्स हैं, अब उनके बारे में जब पढ़ेंगे, ये जितने भी पहले हजार साल जीते रहे, उनकी बाबत भी आप पढ़ेंगे कि सालों के बाद किसी एक का जिक्र आता है, पर उसका हरगिज ये मतलब नहीं उससे पहले वो भांज थे। मेरे अजीज बहन और भाई, हमारा ताल्लुक जो है, आज ये बातें हैं तो इंफॉर्मेशन की हैं, नॉलेज है, पर ये वो प्लान है जो रिडेम्पशन का है। यहीं से जो है वो नजात का रास्ता भी निकलता है, यहीं से जो है हयात के दरख्त का भी जिक्र मिलता है, यहीं से वो कलाम भी है जिसके सबब से मौत जो है वो उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, और यहाँ पर वो कलाम भी है जिससे हमेशा की जिंदगी भी मिल सकती है। दोनों कलाम दोनों दरख्तों की सूरत में, शक्ल में अदन में मौजूद थे, एक हयात के दरख्त के तौर पर और एक नेक और बद की पहचान के दरख्त के तौर पर, जो कि खुदा की शरीयत, खुदा का अपना ही कलाम है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि उसको खाने के बाद, जब उसे आदम ने खा लिया, खुदा ने उसे सजा भी सुना दी, और फिर इससे पहले कि वहां से वो हटे, उसने कहा अब आदम जो है वो नेक और बद की पहचान में हम में से एक की मानंद हो गया है। ही इज जस्ट लाइक अस। अब उस शरीयत के कलाम को हम भी उससे जो है ना दाएं हट सकते हैं ना बाएं हट सकते हैं, और अब उसी शरीयत के कलाम से ना ये दाएं हट सकता है ना बाएं हट सकता है। इसलिए हम सब अब भी जो है उस कलाम की वजह से हम साथ साथ चलेंगे, और ये अब नेकी और बदी की पहचान में हम मेरे साथ है, हमारा इसके साथ जो है वो इस तरह से जॉइंट वेंचर रहेगा जब तक ये जमीन पर रहेगा, जब तक खुदा की निजात का फिर से निजात का मंसूबे का ऐलान न हो जाए। खुदावंद आप सबको और मुझे भी इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। Amen, amen. Thank you, तारक भाई। God bless you. खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, क्योंकि हमने बरकत पाई है, हमने कुछ बातों को, जो गहरी बातें उनको सीखा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप एक दफा फेसबुक पे जाके इस वीडियो को दोबारा से जरूर सुने। जब आपको यूट्यूब भेजा जाता लिंक, तब भी इसको दोबारा जरूर सुना करें। तारक भाई आपका माइक खुला? ओके, आप ठहरिए प्रेयर के लिए, राइट? जी, थैंक यू। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। सवाल थे कुछ, और कुछ बहन भाइयों के वाकई, और ये सवाल होना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बजाय इसके कि हम अपना कोई कंक्लूजन निकालें। क्योंकि खादिम ने सवाल किया था कि अगर आदम और हवा के बच्चे थे पहले, केन से पहले, तो फिर जब गुनाह हुआ तो वो बच्चे, आदम को तो निकाल दिया अदन से, तो फिर वो बच्चे कहाँ चले गए? क्योंकि वो तो पाकीज़गी की हालत में थे। क्या वो अदन में ही रख लिए गए, या फिर अदन से बाहर आदम हवा के साथ? तो क्लियर हो गया कि आदम और हवा, वो अदन का निकलना बाहर या अंदर रहना, खुदा की प्रेजेंस की बात हो रही है। और एक दिन हम सब उसमें शामिल किए जाएंगे। किस वजह से? क्योंकि पिछले आदम ने फरमाबरदारी की, उसके वसीला से। खुदा का शुक्र करते हैं। खूबसूरत कलाम था, ज़बूर 8 की बात कर रहे थे पास्टर तारिक। आप ज़बूर 8 देख लीजिएगा, बहुत सारी बातें आपको वहां से क्लियर होंगी। जो अभी उन्होंने कहा था कि खुदा ने आदम को अपने से कुछ ही कमतर बनाया, उसको शौकत और जलाल का ताज उसके सर पे रखा, और उसको जितनी खुदा ने चीजें बनाई थी उनके ऊपर, उनके ऊपर हुकूमत दे दी। तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। थैंक यू तारक भाई, बहुत बरकत मिली है, बहुत सीखा है हमने। ये डीप है, डीप चीजें, और मैं समझती इनकी जरूरत है हमें। हम प्रीचिंग भी यहाँ पे आती है, टीचिंग भी आती है, और अभी हम खाली दूध ना पीते रहेंगे, क्योंकि हमने बेसिक चीजें बहुत, हम 3 साल से सीख रहे हैं। तो अभी हमें ये टीचिंग में डीप चीजों के अंदर जाना चाहिए, ताकि कोई हमसे सवाल करे
تو हमें पता हो कि उनको कैसे जवाब देना, क्या जवाब देना, कलाम के अंदर रह के, उस अंडरस्टैंडिंग के अंदर रह के, जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है। खुदा का शुक्र करते